سائبرآباد میونسپل کمشنر نے عوامی مسائل کے حل کے لیے شروع کی گئی خصوصی مہم کے تحت منی کنڈا کا تفصیلی دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ سائبرآباد میونسپل کمشنر کے زیر اہتمام ایک خصوصی مہم 1 وارڈ ایوری ڈے شروع کی گئی ہے۔ اسی مہم کو جاری رکھتے ہوئے سائبرآباد کمشنر نے منی کنڈا وارڈ کا تفصیلی دورہ کیا۔ انہوں نے مختلف علاقوں میں پہنچ کر مقامی لوگوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے۔ اس دورے کا بنیادی مقصد شہر کے بنیادی ڈھانچے میں موجود خامیوں کو دور کرنا اور شہریوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانا ہے۔ کمشنر نے واٹر سٹوریج ٹینکس اور ڈرینیج سسٹم کا معائنہ کیا۔ انہوں نے نالوں کی صفائی اور گندے پانی کی نکاسی کے بہتر انتظام کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت جاری کی۔ انہوں نے بارش اور دیگر وجوہات سے متاثرہ سڑکوں کی فوراً مرمت کا کام بھی شروع کرنے کی ہدایت دی ہے تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ منی کنڈا میں موجود عوامی پارکس کی خستہ حالی پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کمشنر نے ان پارکس کی صفائی اور پودوں کی باقاعدہ دیکھ بھال کو یقینی بنانے کی تاکید بھی کی۔ سائبرآباد میونسپل کمشنر کے مطابق سائبرآباد کی حدود میں آنے والے ہر وارڈ میں شہریوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیح ہے۔ 1 وارڈ ایوری ڈے مہم کے تحت وہ براہ راست عوام تک پہنچ رہے ہیں تاکہ سرکاری افسران اور عوام کے درمیان فاصلہ ختم ہو سکے اور مسائل فوری حل کیے جا سکے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے کے خلاف پاکسو معاملہ درج ہونے کے بعد تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ کہا، مرکزی وزیر بنڈی سنجے اور پارٹی کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مرکزی وزیر بنڈی سنجے کے بیٹے کے خلاف پاکسو کیس درج کیا گیا ہے۔ اس حساس معاملے پر اب بھارتیہ جنتا پارٹی کی ریاستی قیادت کا ایک اہم بیان سامنے آیا ہے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے واضح کیا کہ اس پورے معاملے میں پارٹی یا پھر بنڈی سنجے کا کوئی کردار نہیں ہے۔ این رام چندر راؤ نے مہیلا مورچہ کی موجودگی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنڈی سنجے کے بیٹے نے جو کچھ کیا ہے وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، اس سے بنڈی سنجے یا پھر پارٹی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بنڈی سنجے بھارتیہ جنتا پارٹی کے خود آور لیڈر ہیں اور مرکزی وزیر ہیں، لیکن یہ معاملہ خالصتاً ذاتی نوعیت کا ہے اور پارٹی اس میں کسی بھی طرح سے ملوث نہیں ہے۔ این رام چندر راؤ نے کہا کہ بیٹے کے اقدامات کی ذمہ داری باپ پر نہیں ڈالی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور اس معاملے کو لے کر کسی قسم کا سیاسی اثر و رسوخ استعمال نہیں کیا جائے گا۔ అదే కుటుంబంలో జరిగినటువంటి ఒక ఇన్సిడెంట్ పార్టీకు అది సాయం లేదు. ఇట్స్ ఎ లీగల్ మ్యాటర్. లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్. బండి సంజయ్ గారు మన నేత, మా మినిస్టరు, ఆయనకు ఈ యొక్క దీంతో ఎపిసోడ్ సంబంధం లేదు. ఒకవేళ వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఏమైనా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటే దట్ విల్ బి ఇన్వెస్టిగేటెడ్ బై ది పోలీస్. ریاستی وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے ہیومینٹی ہاسپٹل باقی مہدی پٹنم میں سی ٹی اسکین فیسلٹی کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ شہر حیدرآباد کے علاقے مہدی پٹنم میں واقع ہیومینٹی ہاسپٹل، جو کہ اپنی سستی اور معیاری طبی سہولیات کے لیے جانا جاتا ہے، اس نے اب مریضوں کے لیے جدید ترین سی ٹی اسکین کی سہولت بھی متعارف کروائی ہے۔ اس سہولت کا مقصد عام آدمی تک جدید تشخیصی عمل کی رسائی کو ممکن بنانا ہے۔ ہیومینٹی ہاسپٹل کی انتظامیہ کی جانب سے سی ٹی اسکین کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس میں تلنگانہ کے وزیر برائے اقلیتی بہبود محمد اظہرالدین نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اور انہوں نے اس نئی سہولت کا افتتاح انجام دیا۔ اسپتال کے بانی ڈاکٹر محمد شجاعت اللہ اور شریک بانی محمد شہباز الدین کے مطابق اس نئی سہولت کے ذریعے غریب اور متوسط طبقے کے مریضوں کو انتہائی کم قیمت پر معیاری اسکیننگ کی سہولت فراہم کرنا ہے۔ مہمان اعزازی کے طور پر معروف سماجی کارکن اظہر مخصوصی، مسجد باغ عامہ کے امام و خطیب ڈاکٹر احسن الہمومی اور ہاسپٹل کے ایم ڈی ڈاکٹر اے اکشے ریڈی بھی اس موقع پر موجود رہے۔ تمل ناڈو کے نومنتخب وزیر اعلیٰ وجے جوزف نے سابق وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن سے ملاقات کی۔ تمل ناڈو کی سیاست میں آج ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ ریاست کے نو منتخب وزیر اعلیٰ اور ٹی وی کے سربراہ جوزف وجے نے ایک اہم سیاسی اور اخلاقی روایت قائم کرتے ہوئے سابق وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن سے ملاقات کی۔
नौमुंतखब वज़ीर आला विजय चेन्नई के इलाके आलूरपेट में वाक़ DMK के सदर MK स्टालिन की रिहाइशगाह पहुंचे, जहां पर उनका इस्तकबाल किसी हरीफ की तरह नहीं बल्कि एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान की तरह किया गया। जैसे ही वज़ीर आला विजय स्टालिन की रिहाइशगाह पहुंचे, साबिक़ नायब वज़ीर आला अदयानिधि स्टालिन ने गले मिलकर उनका खैर मक़दम किया। बादशाह MK स्टालिन और विजय के दरमियान इंतहाई खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गुलदस्ते पेश किए। MK स्टालिन ने वज़ीर आला विजय को नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद पेश की, जबकि विजय ने रियासत की बेहतरी के लिए साबिक़ा हुकूमत के तजुर्बात और ताउन की अहमियत पर जोर दिया। TPCC के कारगुजार सदर व साबिक़ MLA जग्गा रेड्डी ने 50 बच्चों में साइकिलें तकसीम की। संगारेड्डी में कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक़ MLA जग्गा रेड्डी ने अपनी रिहाइशगाह पर 50 बच्चों में साइकिलें तकसीम की। इस इक़दाम का मकसद तलबा की हौसला अफजाई करना और उन्हें तालीमी व तफरीही सरगर्मियों के लिए सहूलत फराहम करना है। संगारेड्डी टाउन में मुनक़्क़िद एक तकरीब के दौरान जग्गा रेड्डी ने 50 मुस्तहिक़ बच्चों को साइकिलें हवाले की। इस मौके पर बच्चों में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। जग्गा रेड्डी ने बच्चों को निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ सेहत पर तवज्जो देने की तलक़ीन की। उन्होंने मौसम गर्मा की तातीलात के हवाले से कहा कि बच्चे कौम का मुस्तक़बिल है, लिहाजा वो अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। दोपहर की तपती धूप और लू में साइकिल चलाने से गुरेज करें ताकि लू लगने जैसे ख़तरात से बचा जा सके। साबिक़ रुकन असम्बली ने वाज़ेह किया कि साइकिलें तकसीम करने का ये अमल मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। बताया जाता है कि अब तक 320 साइकिलें तकसीम की जा चुकी हैं। जिन बच्चों ने जग्गा रेड्डी के दफ्तर में अपने नाम दर्ज करवाए हैं, उन्हें भी जल्द साइकिलें दी जाएंगी। मजीद 600 साइकिलों की तकसीम के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव ने नागर कर्नूल ज़िले का दौरा करते हुए धान और मकई की खरीदारी के अमल का तफसीली जायजा लिया। ज़राए ने बताया कि रियासती वज़ीर बराए आबकारी व सियाहत जूपल्ली कृष्णा राव पीर को नागर कर्नूल ज़िले का दौरा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने धान और मकई की खरीदारी के अमल का तफसीली जायजा लिया। रियासती वज़ीर ने सरकारी कामों में सुस्ती दिखाने वाले ओहदेदारों को भी आड़े हाथों लेते हुए ये वाज़ेह किया है कि किसानों के मामले में किसी भी किस्म की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वालों को मुअत्तल किया जाएगा। मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव ने किसानों से भी बराह रास्त बातचीत करते हुए उनके मसाइल से वाक़फियत हासिल की। वज़ीर के दौरे के मौके पर कुछ अहम ओहदेदार अपनी ड्यूटी से गायब रहे तो वज़ीर ने सख्त बरहमी ज़ाहिर की। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को फ़ौरन अहकामात जारी किए कि जितने भी ओहदेदार बगैर इतला के गैर हाजिर हैं, उन्हें फौरी तौर पर मेमो जारी करते हुए उनसे जवाब तलब किया जाए। मिनिस्टर जूपल्ली कृष्णा राव ने कहा कि हुकूमत किसानों के खून पसीने की कमाई का एक एक दाना खरीदने के लिए पुरअज़्म है और अगर कोई ओहदेदार किसानों को परेशान करने या खरीदारी में रुकावट डालने का सबब बनता है तो उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जो दूसरों के लिए मिसाल बन जाएगी। गफलत की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कलेक्टर को हिदायत दी है कि वो किसानों को बैग्स फराहम करे और ट्रांसपोर्टेशन के अमल को तेज़ करते हुए किसानों के बैंक खातों में रकम की बरवक्त मुंतकली को यकीनी बनाए। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे के खिलाफ कार्रवाई कोई सियासी इंतखाम नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है और कसूरवार कितना ही ताकतवर क्यों न हो बच नहीं सकेगा। मरकजी वजीर बंडी संजय के बेटे से मुताल्लिक़ जारी तनाज़े पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर पूनम प्रभाकर ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। उन्होंने वाज़ेह किया कि तेलंगाना हुकूमत किसी के खिलाफ सियासी इंतखाम के तहत काम नहीं कर रही है, बल्कि रियासत की बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। उन्होंने मरकजी वज़ीर को मशवरा दिया कि वो एक जिम्मेदार आइनी ओहदे पर फायज होने के नाते हमदर्दी हासिल करने के बजाय तहकीक़ात में ताउन करें। पूनम प्रभाकर ने कहा कि वज़ीर दाखिला के तौर पर बंडी संजय को कानून के सामने सर तस्लीम खम करके एक मिसाल बनना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत तेलंगाना मुतासिरा लड़की के साथ खड़ी है ताकि रियासत की ख़वातीन खुद को महफूज महसूस करें। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला ने DGP को हुक्म दिया है कि तहकीक़ात मुकम्मल तौर पर शफाफ और किसी भी बैरूनी दबाव से आज़ाद होकर की जाए। पूनम प्रभाकर का कहना था कि इस मामले में
पसमानदा तबकात को लेकर सियासत करना गैर ज़रूरी और नामुनासिब है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर किसी ने भी अपने असर व रसूख या ताकत के जरिए तहकीकात में रुकावट डालने की कोशिश की तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। బండి సంజయ్ గారు తమరి కొడుకు మీద తెలంగాణ ప్రభుత్వం వివక్షపూరితంగా ఎటువంటి కక్ష సాధింపు చర్య చేయడం లే. మీ పట్ల మీరు కేంద్ర మంత్రిగా మీరే స్వయంగా మీ కుమారుడిపై వచ్చిన ఆరోపణలను నిష్పక్షపాతంగా విచారణ చేయడానికి కోరాల్సింది. మీరు దాని మీద ఏదో కుట్ర చేస్తా ఉన్నారు, సానుభూతి కొరకనే ప్రయత్నం చేసే కంటే ఆ అమ్మాయి మిమ్మల్ని కలిసిన మాట వాస్తవమా కాదా, ఆ అమ్మాయితో బాబు తిరిగిన మాట వాస్తవమా కాదా, వాటిని నిరూపణ చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసి నిర్దోషిగా అయితే నిర్దోషిత్వం నిరూపించుకోండి. కానీ మీరు కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి ఉండి ఒకవేళ పొరపాటు జరిగితే చట్టం తన పని తాను చేసుకుపోయే విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటా ఉన్నా. ఇక్కడ ఎవరి పట్ల ఎవరికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం వివక్ష లేదు. తెలంగాణ ఆడబిడ్డలను కాపాడే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం మీద ఉంది. తప్పకుండా తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు విశ్వాసం కలిగజేస్తాం. ఎక్కడ ఇటువంటి చర్యలు జరిగితే వారికి పూర్తిగా సపోర్ట్ గా ఉంటుంది. దాని తర్వాత నిన్న మొన్న కొంత మున్నూరు కాపు సంఘానికి సంబంధించిన నాయకులు కూడా ఏదో వివక్షపూరితంగా వ్యవహారం చేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు. నాకున్న సమాచారం మేరకు ఆ అమ్మాయి కూడా సేమ్ మున్నూరు కాపు వర్గానికి సంబంధించిన అమ్మాయి అని తెలిసింది. కాబట్టి ఇందులో ఎవరిని బ్లేమ్ చేయడానికి వాడుతున్నటువంటి అంశం లేదు ఇందులో. కాబట్టి ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ అంశం మీద విచారణకు ఆదేశించినారు. నిన్న ప్రధానమంత్రి గారి ప్రోగ్రాం ఉండడం వల్ల అందరూ కూడా అదే ఏరియాలో ఉండడం వల్ల కొంత ఒక రోజు ఆలస్యమై ఉండొచ్చు. కానీ కన్సర్న్డ్ డీసీపీ లేడీ ఆఫీసర్ తోటి విచారణ కొనసాగుతోంది. దోషి ఎవరు కూడా తప్పించుకొని పోలేరు, ఎంతటి పెద్దవాళ్ళైనా అనేటువంటిది ప్రభుత్వం అంతే కఠినంగా అంతే సీరియస్ గా వ్యవహారం చేస్తుందని గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా మరి డీజీపీ గారిని ఆదేశించినారు. తప్పకుండా ఆ కుటుంబానికి కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలియజేస్తున్నాం. ఎటువంటి ఆందోళన విచారణలో कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के महीनों पहले मुल्क की माशी हालत से मुताल्लिक़ कही गई बात दुरुस्त साबित हुई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अवामी जलसों से खिताब करते हुए राहुल गांधी के कहे गए बात की तायद की। हिंदुस्तान पर माशी बहरान का खतरा मंडला रहा है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी कई महीनों पहले ही ये बात कह चुके हैं, लेकिन अब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी यही बात दोहराई है। आपको बता दें कि मार्च के महीने में राहुल गांधी ने मुतनब्बा किया था। उन्होंने कहा था कि मुल्क की माशी सिमत दुरुस्त नहीं है और एक बड़ा बहरान दस्तक दे रहा है। गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना और कर्नाटक में अवामी जलसों से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है वो राहुल गांधी के उसी पुराने मौक़िफ़ की तायद करता नजर आता है। वज़ीर आज़म ने रियासतों के मालियाती इंतज़ाम और बढ़ते हुए कर्ज़ों पर गहरी तशवीश का इजहार किया। आपको याद दिला दें कि राहुल गांधी का मौक़िफ़ था कि बेरोज़गारी और बढ़ती हुई महंगाई मुल्क की बुनियादों को खोखला कर रही है। अब जब वज़ीर आज़म ने जुनूबी रियासतों में मालियाती नज़्म व ज़ब्त की बात की है तो कांग्रेस उसे अपनी अखलाक़ी जीत करार दे रही है। आपको ये भी बता दें कि कर्नाटक और तेलंगाना के जलसों में वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अगर रियासतों ने अपनी मालियाती पॉलिसियों पर नज़रसानी न की तो श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। कांग्रेस का कहना है कि मोदी हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा रियासतों पर डाल रही है, जबकि खतरे की घंटी खुद मरकज की माशी पॉलिसियों की वजह से बजी थी। 2.5 लाख रुपए पर मिनट का जो है नुकसान हो रहा है, ये जगदम्बिका पाल साहब ने चेयर से बोला। क्या और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है, उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है, यही हम मांग रहे हैं। और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है
वेस्ट एशिया का जो मामला है, क्या वो जरूरी नहीं है क्या? फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इश्यू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं. उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है, ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी. उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी. प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा. तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहते. आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए, अंदर नहीं आ पाएंगे. अब बता रहा हूं, आप देख लेना, अंदर नहीं आ पाएंगे. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,